Is my screen visible? Okay, good. So we'll start with the today's lecture. So as we discussed yesterday, we had a pivot table, right? So pivot table we studied and we understood using some examples. And I asked you to do these things for a homework part, right? You must have done this, and if you are not, please do it maybe by weekend. So it is very important feature and you must everybody should know how to use this, right? We have studied in depth what it is, not only chart, sorry, not only table, the chart as well. Sorry. Sorry. So charts and the tables and how to format this chart. Okay. So what we are going to study today is, so yesterday I told you there's something called classic view, right? So we'll solve one of the example, maybe how many new customers have opened IRA account. So I want to understand this. How many of new customer have opened IRA account? So what I can do is I should go to original data, uh, which is on the pivot table, and then go to data, sorry, insert pivot table, right? And this is for uh, so account opened by, okay, sorry, maybe we can take customer, I guess. Yeah, customer. And then account type. So this is what I want. New customer and IRA, right? So maybe, and then customer, I can take it into values as well. So this is what I want, new and IRA. So there are only two people who have opened IRA account in the new category, right? So this is what I wanted. And ये हमने by using a simple किया है. If I want to do it using a classical pivot table, so what I can do is click here, this one, option, okay. Once you click on the option, display, and then and this option, okay, classical pivot table. Once you do that, you will get a new, let me show you once again. देखिए यहाँ पे आप लोग तो drag and drop. So new and existing, account type, column में, then customer again drag into values. That same answer आपको आएगा, but this is the one higher, right? Hope you guys understand what is the classical pivot table. Classical is only the layout. This layout is the classical option where you can directly drag here instead of नीचे drag करने के बजाय. Okay. All other options we have already studied and you guys already know how to use slicer, timelines and all those, right? Hope most of you joined. So just now we did one of the question from your homework. आपके assignment से एक question हमने solve किया है. And I want others to also solve similar questions, but yeah. Okay. Let's start with the new topic. So आज हमारा topic है goal seek and solver. So there's one part, it's in the data option. Okay, there is something called what if analysis. So as a data analyst, you don't only create or play with the numbers, you try to understand the situation and solve the problem. As in, if I want to give you an example, one of the problem is how much discount I should offer on our product. Sale is going on, अभी sale शुरू है, right?
तो कितना डिस्काउंट ऑफर करना है, 30%, 40, 50। सो ये कैसे निकालना है? इट इज यूर जॉब टू प्रेजेंट सच सिनारियोज, मतलब अलग अलग सिनारियोज प्रेजेंट करना टू द मैनेजमेंट कि मान लीजिए हमने 40% डिस्काउंट दे दिया तो कितना लॉस होगा, 50% दे दिया तो कितना लॉस होगा. So all those things, right? So you need to understand the situation and solve the problem with respect to the uh, percentage or discount or profit. Okay. So with the similar situation, so we have two options. हमारे पास दो एक चीज है. First one is the goal seek. What if analysis में goal seek है. What this does is it will solve you the problem related to one single variable. मतलब ओके, आपके कॉलेज के टाइम में मे बी यू कुड हैव सॉल्व्ड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू कितना, राइट? इट्स डेफिनेटली 2. समथिंग लाइक दिस यू माइट हैव सॉल्व्ड. सो और x स्क्वायर समथिंग 256 है तो क्या है, और x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 40 है तो x का वैल्यू कितना, ऑल दोज थिंग्स, बट ओनली वन वेरिएबल. तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आप एक्सेल में भी सॉल्व कर सकते हो. And if I want to explain you with the business context, let me give you the example. Okay. मान लीजिए ये ऐसा सिचुएशन, एक बिजनेस है अपना. सो वी हैव 3 प्रोडक्ट, टेबल चेयर एंड ऑफिस फर्नीचर, राइट? और उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, मतलब 1.5 लाख, 2.44 लाख रुपीज वर्थ ऑफ फर्नीचर आई एम सेलिंग, एंड इसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इतना है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट. ओके, दिस इन प्रॉफिट मतलब मैं 1.5 लाख रुपए के टेबल्स बेच रहा हूँ तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है. एंड व्हाट इज दैट 20%? इज नथिंग बट 30,000 रुपीज. ओके, मतलब 100 रुपीज का कुछ बेच रहे हो तो आपको 20 रुपए प्रॉफिट है, 80 रुपीज इज अ मटेरियल कॉस्ट, राइट? सो समथिंग लाइक दिस. नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस कि आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट निकालना है थ्रू आउट द ईयर. एक साल में आपको 1.5 लाख का प्रॉफिट करना है. करंटली आपने टेबल और चेयर बेचा है और उससे कितना प्रॉफिट है, आपको ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है, बट आपको ये रिमेनिंग प्रॉफिट अचीव करना है 1.5. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा सो दैट आपका प्रॉफिट 1.5 लाख हो जाए. मतलब ऐसे कितने ऑफिस फर्नीचर बेचना है सो दैट मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख का होगा. तो ये हमें निकालना है. दिस इज नथिंग बट one variable which I need to find it out. So what I can do is I should use a what if analysis में goal seek. Important thing about this is only one value you can find it out. Goal seek use करके आप एक value find out करते हो. तो there are very simple option. Goal seek menu है, set, sell, to value and by changing. Set sell मतलब कौन से सेल को आपको चेंज करना है, ये सेल को, राइट? सो आई हैव सिलेक्टेड दैट सेल. देन टू वैल्यू, कौन से वैल्यू को सेट करना है, 1.5 लाख. तो लिखो, मतलब ये 90,000 1.5 लाख होना चाहिए ना, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, ये वैल्यू 1.5 लाख. बाय चेंजिंग सेल, कौन से चेंज करके, ये ब्लैंक वाला, राइट? यहाँ पे कुछ मैं वैल्यू डालूंगा, देन इट विल सॉल्व. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली. देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो, एक्सेल एक एक वैल्यू इंसर्ट करके देखता है. ओके, एंड देन इट विल सॉल्व. ये देखिए यहाँ पे, नाउ आई शुड सेल अ 60,000 वर्थ ऑफ मटेरियल so that I will get a 1.5 lakh sale, right? By changing sale. Understood? So something related with the one variable, मतलब एक वेरिएबल आपको चेंज करके ये आंसर निकालना है, तो समथिंग लाइक दिस. बट व्हाट इफ 2-3 वेरिएबल है और आपको एक बिजनेस सिनारियो देना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द मोर डिटेल्ड स्ट्रक्चर. ये देखिए, एक
प्लांट और एक प्रोडक्ट रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है ABCDE, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट है। ओके, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल, कार, चेयर, टेबल। सो उससे रिलेटेड एक ऐसा ही प्रोडक्ट ए है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है 3400। ओके, मतलब 34,000 उसका प्रोडक्शन, मतलब बनाने के लिए जो खर्चा आता है। देन नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब एम्प्लॉयज का सैलरी, लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब तो इसका 2,000 रुपये लगता है। देन एक्स्ट्रा, में भी ओवर टाइम लोगों ने कुछ किया और कुछ आपने एम्प्लॉय के लिए स्नैक्स, टी, कॉफी अरेंज करते हो, दैट बिकम्स एक्स्ट्रा बिकॉज दैट इज ऑप्शनल, राइट। सो टोटल कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट ए का 5600, मतलब 5600, 5600 ये टोटल कॉस्ट है। सिमिलरली अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग कॉस्ट है। ओके, एंड देन टोटल कॉस्ट आपका कितना आ रहा है 44,000 आ रहा है। मतलब आप कंपनी 5-6 प्रोडक्ट बेचती है, तो सारे प्रोडक्ट बनाने का खर्चा 44,000 है। ओके, बट नाउ अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट ईयर मुझे 50,000 तक मैं बढ़ा सकता हूँ, मेरा बजट बढ़ गया क्योंकि मैंने प्रॉफिट कुछ कमाया और उस प्रॉफिट का मुझे इन्वेस्ट करना है मेरे बिजनेस में। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे टोटल प्रोडक्ट का 44 हो रहा है, तो लेट्स मेक इट 50,000, मतलब 50,000 वर्थ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, 50,000 रुपए का मटेरियल और टोटल कॉस्ट। तो मुझे अभी बताइए, तो ये जो इंक्रीज हुआ इन दोनों के बीच में भी कितना है, समथिंग अराउंड 6,000, राइट। तो ये 6,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ देना चाहिए 6,000 में से, जो 6,000 में इन्वेस्ट करने वाला हो कंपनी में, राइट। सो इसमें से कुछ ना कुछ हर एक प्रोडक्ट को मिलना चाहिए। तो ये कैसे आप डिसाइड करोगे? ओके, सो दिस कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशन है, मतलब ये हमें सॉल्व करना है सिनेरियो और सिचुएशन, तो दैट आई कैन यूज अ सॉल्वर। मान लीजिए मैं एक कंडीशन रख, टोटल बजट मेरा 50,000 होना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो शुड नॉट एक्सेड 500, मतलब ये 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये फिक्स कॉस्ट 2,000 ही रहना चाहिए, मतलब ये हमेशा 2,000 ही रहना चाहिए। एंड ये 8,000 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट इट शुड नॉट गो मोर देन 8,000। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को यूज करके ये जो 50,000 है, ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अक्रॉस द प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। ओके, सो दिस इज हाउ आई नीड टू डू इट। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्व करने के लिए यू नीड टू यूज अ समथिंग कॉल्ड सॉल्वर। ओके, डेटा टैब में आप देखोगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड सॉल्वर हियर। ओके, सो अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या समझ में आया एवरीवन? सो कैन एनीवन क्विकली कंफर्म सॉल्वर दिख रहा है क्या आपके लैपटॉप में? सॉल्वर दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके, दोज हु आर नॉट, मतलब जो लोगों के लैपटॉप में नहीं दिख रहा है, व्हाई? बिकॉज यू नीड टू इनेबल दिस ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ डे टू डे ऑप्शन, मतलब रेगुलर लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ये सब स्पेशल केस में यूज होता है। ओके, क्लियर? दैट्स व्हाई यू नीड टू इनेबल दिस ऑप्शंस। So how to enable? Let's see how to enable this option. Okay, so what we can do is go to file, file पे जाइए, go to option, यहाँ पे option and then go to add-ins. Right, हो गया सबका add-ins। add-ins के बाद go option. Okay, and then once you click on the go, यहाँ से देखिए you can enable. Please enable data analysis tool pack, ये हम कल देखेंगे। and this is a solver. कल नहीं तो मंडे। ओके, एनी ऑफ वन ऑप्शन।
Okay, you can use this. Then solver, once you enable, press OK. तो आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, right? This is in the data tab. दिख रहा है, right, सबको? So we have other options. Other Options. I don't see that option. Listen to my file options. I have direct get added. And more मध्ये options option options आहे. Adding for 5 seconds. ते करा. खाली go करा मतलब. Got it, sir. More option is there, more. So you can use a more and then. Got it, sir. We got the option. भाग्यश्री आप बात कर रहे हो क्या? Yes. इको आ रहा है ना? इको आ रहा है ना इसलिए. ओके, हो गया ना आपको सॉल्व? ओके, गुड. ओके, so everyone got it, the option? So once we are good with the options, what we can do is we can start using that option. So coming to this option, okay, so what I can do is data, solver पे क्लिक करना है and then set objective is आपको ये this cost आपको 50,000 करना है, right? So this cost is 50,000 and then value of 50,000. okay, and then by changing cell, कौन सा सेल आप चेंज कर सकते हो? मे बी यू कैन चेक कीजिए यहाँ पे 5, इट शुड नॉट गो 500 ना, मतलब ये सेल आप 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये आप चेंज कर सकते हो, राइट? देन कॉमा और प्रोडक्शन कॉस्ट 8,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, राइट? ये देखिए यहाँ पे, राइट? सो आई विल यूज दिस, मतलब ये आई कैन चेंज दिस, मतलब इस पे मैं 8,000 तक जा सकता हूँ मैक्सिमम, राइट? तो दिस, बाकी दिस ऑप्शन ऑलरेडी फिक्स्ड, क्योंकि 2000 है और 2000 ही चाहिए था हमें. ये देखिए फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स एट 2000. ओके, अंडरस्टूड, गुड. So this one you might not see, let me delete those. ओके, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको कंडीशंस डालने हैं. क्या क्या आपने यहाँ पे कंडीशन सीखे हैं? 2000, 500, whatever the conditions are. Okay, sorry, चेंज हो गया यहाँ पे. this one, so यहाँ पे कंडीशन आपको ऐड, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट सिलेक्ट कर दीजिए एंड इट शुड नॉट गो मोर देन 500, राइट? प्रेस ऐड एंड देन प्रोडक्शन कॉस्ट सिलेक्ट कीजिए एंड इट शुड नॉट गो मोर देन 8,000. यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो ग्रेटर देन, लेस देन, प्रेस ओके. ओके, मतलब यहाँ पे हमने कंडीशंस लिखे हैं 500, 8,000. Sir, yes, बोलिए. रिपीट कराल का? ओके, तो तुम्हाला इथे कंडिशन्स द्यायचे आहेत.
Okay, condition as in it should not exceed more than 8,000, right? Here, sorry, project cost. Just a second, let me solve that one. Neither they interrupt. Oh, okay. So what is this? Okay, ठीक है. Close. Let me solve this one and show you कि क्या हुआ. Okay. Now are you able to understand? टोटल ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा 50,000, वो अचीव हुआ. ये प्रोडक्शन कॉस्ट 8,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हुआ, राइट. एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 500, ये हुआ. फिक्स्ड कॉस्ट 2,000 चाहिए, ये 2,000. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, राइट. यस, नो, अंडरस्टूड, राइट. Yes, sir. Yes. Yes, This is sir. how So this is how you can solve the problem. Let me do it once again, maybe I can show you. So हमें करना है, हमें 50,000, ओके, यहाँ पे 50,000 इन्वेस्ट करना है मेरे बिजनेस में, बट अलोंग विद दिस कंडीशन, ये कंडीशन के साथ इन्वेस्ट करना है. तो ये कौन से प्रोडक्ट को कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मोस्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह आप कर सकते हो कि परमिटेशन, इसको 2,000 दे दो, इसको 3 दे दो, फिर चेक करो. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज अ सॉल्वर. सॉल्वर पे क्लिक करना है. सेट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मेरे जो टोटल कॉस्ट है इसको मुझे क्या करना है 50,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 50,000, राइट. बाय चेंजिंग सेल मतलब क्या क्या मैं चेंज कर सकता हूँ. डेफिनेटली एक्स्ट्रा कॉस्ट में 500 तक बढ़ा सकता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट में 8,000 तक ले जा सकता हूँ, राइट. सो दिस इज व्हाट द कंडीशन. ये किसने बोला, यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, राइट. ये आप यहाँ पे आपको जो कंडीशन दिया है उसके ऊपर है, राइट. यही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट. ये दोनों आपको सिलेक्ट करना है, राइट. वंस यू सिलेक्ट, नीचे कंडीशन लिखना है हर एक के, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बी, यू कैन सी द कॉलम बी के लिए हमने लिखा 8,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. ये देखिए, लेस देन और इक्वल टू 8,000, राइट. एंड प्रोडक्शन लेस देन और इक्वल टू 500. सो यहाँ से आपको ऐड करना है कंडीशन. And then once you are done with this, you can use a solve option. इसका एक सिंपल वर्जन भी हम देखेंगे. Once you solve, ये आपको solve करके देखा है, देखिए. It has made 50,000 और बाकी आपके सारे कंडीशन सेटिस्फाई हुए. इसको 500 किया है, इसको 2,000, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट है. उसके हिसाब से इसने 50,000 में आपका जो टारगेट था 50,000, उसमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके. तो इसका ही एक, लेट मी गिव यू अ सिंपल ऑप्शन एंड देन आई कैन शो यू. यहाँ और एक एग्जांपल है, लेट्स डू इट हियर. ये देखिए, दिस इज अ सिंपल मार्कशीट मैंने जो यहाँ पे बनाया है. आपको थोड़ा नेम्स, राइट. तो मैथ एंड साइंस के स्कोर है, और 2 पेपर बचे हैं, हिंदी और इंग्लिश के, और अभी का एवरेज स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो. लेट्स टेक मे बी एग्जांपल ऑफ राहुल. चलो राहुल का एक एग्जांपल लीजिए. राहुल को अभी कितने मार्क्स हैं, मतलब बेस्ड ऑन द 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के ऊपर एवरेज मार्क 48 है, राइट. 55 एंड 41. बट राहुल का टारगेट है कि उसे 60% चाहिए. ओके, एग्जाम में टोटल मार्क्स उसे 60% स्कोर करना है. तो राहुल को हिंदी और इंग्लिश में कितना मार्क्स चाहिए, ये हमें निकालना है, राइट. सो दिस इज हाउ आई वांट टू सॉल्व. तो ये हमें सॉल्व करना है. तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बचपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा कुछ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था. सो दिस इज नथिंग बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमें 2 वैल्यू यहाँ डिराइव करना है, फाइंड आउट करना है, based on our condition saying this should have 60. let's use a solver. तो solver पे क्लिक कीजिए, you will realize कि मुझे क्या चाहिए,
राहुल के मार्क्स, राइट? सो राहुल इज हियर. 48 की जगह मुझे कितना चाहिए, 50 या 60? लेट्स मेक हिम 60. 60% निकालना है. और बाय चेंजिंग सेल, कौन कौन से सेल चेंज हो सकता है? उससे हिंदी में मार्क्स निकाल सकता है वो, नहीं, कॉमा करके एंड इंग्लिश में, राइट? दिस टू. एंड बाय चेंजिंग सेल आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं क्या, कि हिंदी में उसे कितने मार्क्स आ सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 100. 100 से ज्यादा तो मार्क नहीं आएगा ना एग्जाम में. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. So you can add the next condition, English. English में भी quite possible. आपको अभी if राहुल has no confidence, then आप बोल सकते हो कि सर नहीं, कुछ भी हो जाए राहुल को 90 मिल सकता है, 100 तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आप चेक कर दीजिए, ऐड कर दीजिए वैसा कंडीशन. लेस देन आपके पास इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इंटीजर, बाइनरी, अलग अलग कंडीशंस हैं, राइट? वंस यू डू दिस, प्रेस ओके. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी में 100 और उससे कम मिल सकता है, इंग्लिश में 90 और उससे कम मिल सकता है. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो आंसर आया है, देखिए. सो इफ यू वांट टू स्कोर अ 60 मार्क्स, तो उसे 72 एंड 72 स्कोर करना पड़ेगा हिंदी एंड इंग्लिश में. ओके, so this is nothing but how solver works. मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ सिचुएशन है, उसे सॉल्व करने के लिए हम सॉल्वर यूज कर सकते हैं. ये मोस्टली एडवांस कैलकुलेशंस में यूज होता है, बिकॉज एज यू नो कि यहाँ पे डायरेक्टली भी अवेलेबल नहीं है, ये आपको स्पेशल ऑप्शंस में जाके इनेबल करना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ डे टू डे ऑप्शन. मतलब डे टू डे में ये आप यूज नहीं करते. यू विल फाइंड इट आउट, मतलब आपको ये समझ में आएगा whenever you have special requirement. ये थोड़ा एडवांस एक्सेल का टॉपिक है. प्योर टेबल इज डे टू डे यू कैन यूज, बट प्योर टेबल के आगे जो भी हम पढ़ेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन योर सिचुएशन और सिनारियो. मतलब ऐसे कई केसेस है, केस टू केस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड? केस टू केस बेसिस पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. क्लियर? So this is how you can use a solver option where you want to find out a multiple values. So definitely you can try. होमवर्क में के लिए आप ले सकते हो ये 2-3 ऑप्शन, और इनके मार्क्स थोड़े इंक्रीज करना है. किसी को 58 है, तो इसको सपोज ही वांट टू स्कोर 80%, तो कितना मार्क्स चाहिए इन दोनों को, ये आप कर सकते हो. और यू कैन यूज दिस ऑप्शंस, ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड? सो कल के क्लास के बारे में आई विल टेल यू इन द ग्रुप में ही मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा. बट जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, सैटरडे कल आपका सेशन है ऑलरेडी, राइट? 3 to 5, सॉरी 10 बजे आपका एक मैथ्स का Sir, 12 o'clock. जस्ट अ 12 सेकेंड. o'clock we are having the session which is for ETL. Yes. 12. Okay, there is a echo. Okay, there is a echo. आ रहा है. हाँ, now it is good. Okay. हाँ, so सैटरडे, जैसे आपको पता है हर सैटरडे एक्टिविटी होता है. कल के एक्टिविटी, लेट मी चेक, इट इज अराउंड, जैसे बोला मैम ने, 12 to 2 है, और दिस इज रिगार्डिंग ETL पाइपलाइन. ओके, सो ETL इज एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड. जो आपको डेटा आता है वो कैसे आता है, कौन से प्रोसेस से आता है, सिस्टम से आता है, इट इज रिगार्डिंग दैट. सो होप यू कैन रीड बिट अबाउट ETL, क्यों लगता है, क्या रहता है, एंड मोर डिटेल आपको कल के सेशन में मिल जाएंगे. Good, everybody understood? So please do the practice. Please do the practice. थोड़े like bit advanced, so you may not be able to understand in the first go, but आप जैसे ही 1-2 practice करोगे, then maybe you will get it. Okay, so yeah, thank you, thanks a lot. That's it from my side. और एक 2-3 टॉपिक हमारे बचे हैं, मोस्टली रिलेटेड टू लाइक
these two are scenario manager, data table, and एक और थोड़ा एडवांस ऑटोमेशन रिलेटेड. सो अनदर 2 लेक्चर्स और एक 2 लेक्चर्स आपके एक्सेल के होंगे एंड देन मैं आपका एक्सेल कंक्लूड होगा. ओके. So yes, thank you. Thanks a lot everyone for your time. If you have any doubt, we can connect. Thank you, sir. Thank you. Thank you.